السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں پیج لے آؤٹ مینیو کو ڈسکس کیا تھا، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے ریفرنس ٹیب کے اوپر۔ تو اگر آپ نے پیج لے آؤٹ، ڈیزائن، انسرٹ، ہوم کی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو آپ اس پلے لسٹ کو فالو کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، اور جا کے ہوم، انسرٹ، ڈیزائن، پیج لے آؤٹ کو آپ اس ویڈیو کو واچ کر سکتے ہو۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ریفرنس کی کلاس آج۔ تو جیسا کہ اس ریفرنس ٹیب کے اندر ہمارے پاس بہت سارے آپشنز آ رہے ہیں اور ہمارے پاس 6 گروپ آ رہے ہیں: ٹیبل آف کانٹینٹ، فوٹ نوٹس، سچویشن اینڈ بیبلیوگرافی، کیپشنز، انڈیکس اور ٹیبل آف اتھارٹیز۔ ون بائی ون ہم اسے ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس آپشن آ رہا ہے وہ آ رہا ہے ٹیبل آف کانٹینٹ کا، جس کے اندر 3 آپشن آ رہے ہیں، ایک تو ٹیبل آف کانٹینٹس، ایڈ ٹیگس اور اپڈیٹ ٹیبل۔ سب سے پہلے یہاں پر میں کچھ ڈمی ٹیگس لینا چاہوں گا، میں نے یہاں پر ڈمی ٹیگس لے لیا، انٹر ہٹ گیا، میرے پاس یہاں پر آ چکے ہیں ڈمی ٹیگس، ٹھیک ہے۔ اب ڈمی ٹیگس ہم نے یہاں پر لے لیا ہے۔ اب کرنا کیا ہے، اس ٹیبل آف کانٹینٹ کو یہاں پر ہم نے کرنا ہے اوپن۔ ٹیبل آف کانٹینٹ ہوتا کیا ہے، جیسا کہ آپ لوگوں نے اپنے رجسٹر یا بک وغیرہ میں دیکھا ہوگا کہ ہمارے پہلے پیج کے اوپر ٹھیک ہے ایک ٹیبل آف کانٹینٹ آ رہا ہوتا ہے، جہاں پر ہمارے پاس سارے چیپٹر کے وائس یعنی کہ چیپٹر نیم آ رہے ہوتے ہیں اور اس کے آگے اس کا پیج نمبر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اگر ہمیں ڈائریکٹلی کسی چیپٹر کے اوپر جانا ہوتا ہے تو ہم ڈائریکٹلی اس پیج نمبر کو دیکھتے ہیں کہ وہ چیپٹر ہمارا کون سے پیج نمبر سے اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی ہم نے یہی کام کرنا ہے اس ٹیبل آف کانٹینٹ کا۔ سب سے پہلے تو میں کام یہ کروں گا کہ ان کو میں سب سے پہلے کچھ بناؤں گا ہیڈنگ، ٹھیک ہے۔ اپنے اس پیراگراف کے کچھ ورڈس کو میں یہاں پر بناؤں گا ہیڈنگ۔ ہیڈنگ بنانے کے لیے ہوم ٹیب میں جاؤں گا اور یہاں سے ایک ہیڈنگ کریٹ کروں گا، سمپل۔ اس کو بھی میں نے یہاں سے سلیکٹ کیا اور اس کو بھی میں نے یہاں سے ہیڈنگ کریٹ کر لیا۔ اس کو بھی سلیکٹ کرتا ہوں یہاں سے ہیڈنگ، یہاں سے میں نے اس کو بھی سلیکٹ کیا اور ہیڈنگ کریٹ کیا۔ یہاں پر میرے پاس ٹوٹل 4 ہیڈنگ کریٹ ہو چکے ہیں۔ اب ٹیبل آف کانٹینٹ ہمارے پاس بالکل پیج کے ٹاپ پہ ہوتا ہے، سمپل ہم یہاں پر تھوڑا سا گیپ لے لیتے ہیں اور یہاں پر ہم ٹیبل آف کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں۔ تو میں جاتا ہوں ریفرنس میں، ٹیبل آف کانٹینٹ میں جانے کے بعد یہاں پر میں کوئی سا بھی ایک ٹیبل چوز کر لوں گا۔ میرے پاس تھوڑے سے ڈیزائنس آ رہے ہیں ٹیبل کے اور میں نے یہاں سے جو پہلا ٹیبل آ رہا ہے میں نے اس کو چوز کر لیا۔ اب دیکھیں میرے اس کانٹینٹ کے اندر کتنے آ رہے ہیں، یہاں پر ہیڈنگ 1 2 3 اور 4، اور میں نے یہاں پر کتنے ہیڈنگ کریٹ کیا ہوا ہے، 1 2 3 اور 4، ٹھیک ہے۔ میں نے یہاں پر 4 ہیڈنگ بھی کریٹ کیا ہوا ہے اور یہ چاروں ہیڈنگ میرے پاس پیج نمبر 1 پر ہی آ رہے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میرے پاس جتنے بھی یہاں پر ہیڈنگ ہے وہ پیج نمبر 1 پر ہی ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، اب اگر مجھے ڈائریکٹلی آپ یہ سمجھے کہ یہاں پر میرے پاس چیپٹر نہیں لکھے گئے، اگر مجھے ڈائریکٹلی اس 4 چیپٹر پہ جانا ہو تو میں کیا کروں گا، کنٹرول پریس کروں گا اور اس چیپٹر کے اوپر جیسے ہی کلک کروں گا میں وہاں پر آ جاؤں گا، یعنی کہ اس چیپٹر کے اوپر آ جاؤں گا۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے کرسر کہاں گیا، اس ہیڈنگ کے اوپر آ چکا ہے۔ اب میں آسانی سے اس چیپٹر کو ریڈ کر سکتا ہوں یا جو بھی مجھے اس پہ کام ہے میں آسانی سے کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر میں نے کام اب یہ کیا، میں نے کوئی ای بک وغیرہ میں کریٹ کر رہا ہوں، اس کے بعد مجھے اس ہیڈنگ کو بھی یہاں پر ایڈ کرنا ہے، تو میں نے یہاں سے ہوم میں کیا، یہاں سے ہیڈنگ کے اوپر کلک کر دیا تو میرا پاس یہ ہیڈنگ کریٹ ہو چکی ہے۔ اب لیکن آپ دیکھیں کہ کانٹینٹ کے اندر تو میرا وہ ہیڈنگ کریٹ نہیں ہوا ہے، ابھی میرے پاس 5 ہیڈنگ کریٹ ہو چکے ہیں لیکن کانٹینٹ میں کتنا آ رہا ہے، 4۔ اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے، ریفرنس میں جانا ہے، اس کانٹینٹ کو سلیکٹ کرنا ہے یعنی کہ ٹیبل آف کانٹینٹ کو، اور یہاں سے اپڈیٹ ٹیبل کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں سے اپڈیٹ انٹائر ٹیبل، دین اوکے کریں گے۔ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس وہ 5واں بھی چیپٹر انکلوڈ ہو چکا ہے، یعنی کہ ایڈ ہو چکا ہے اسی کانٹینٹ کے اندر۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میں اس کے اوپر کنٹرول پریس کر کے کلک کروں تو میں ڈائریکٹلی اس والے پیراگراف کے اوپر میرا کرسر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب سمپل میں مثال کے طور پر ایک کام یہ کرتا ہوں، دوبارہ سے یہاں پر ایک ڈمی ٹیکسٹ لیتا ہوں، ایک پیراگراف کا، انٹر ہٹ کیا۔ اب یہاں پر جو ایڈ ٹیکسٹ کا آپشن آ رہا ہے نا، یہاں سے بھی ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں، ہیڈنگ بنا سکتے ہیں۔ میں نے اس کو سلیکٹ کیا، ایڈ ٹیکسٹ کے اوپر میں گیا اور لیول 1 کو میں نے چوز کر لیا، ٹھیک ہے۔ یہ میرے پاس ایک ہیڈنگ کریٹ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، یہ پورا۔ لیکن مجھے کیا کرنا ہے، اگر مجھے کچھ اسپیسیفک چیز کو ہیڈنگ کریٹ کرنا ہے تو اس کے لیے مجھے جانا ہوگا ہوم ٹیب میں اور یہاں سے ہیڈنگ 1 کو چوز کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اب میں جاتا ہوں ریفرنس میں، ٹیبل کو میں یہاں سے سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں سے اپڈیٹ ٹیبل اور اپڈیٹ انٹائر ٹیبل کروں گا اور اوکے پریس کروں گا تو میرے پاس یہاں پر آ چکا ہے ٹیبل۔ اب اگر میں کنٹرول پریس کر کے اس کے اوپر کلک کروں تو میں کہاں پر آ جاؤں گا، اس پیراگراف کے اوپر آ جاؤں گا۔ اب جو ہمارا آپشن آ رہا ہے وہ آ رہا ہے فوٹ نوٹس کا۔ فوٹ نوٹس کیا ہوتا ہے بھائی، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر
यहाँ पर हमारे पास एक आ रहा है इंसर्ट फुट नोट और एक देखिए यहाँ पर आ रहा है इंसर्ट एंड नोट। ये दोनों के ऑप्शन दोनों अलग ही अलग एक ऑप्शन है। वन बाय वन से देख लेते हैं कि फुट नोट क्या होता है और एंड नोट क्या होता है। अब देखिए फुट नोट का मतलब क्या है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा और डमी टेक्स्ट ले रहा हूँ ताकि मेरा टेक्स्ट सेकंड पेज पर भी आ जाए। यहाँ पर मैं 2 पैराग्राफ लेता हूँ। इस पैराग्राफ को भी मैंने हेडिंग क्रिएट किया, होम पे मैं गया और यहाँ से हेडिंग 1, इसको भी मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से हेडिंग 1 मैंने क्रिएट कर लिया। टेबल में जाके यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ अपडेट, रेफरेंस में गया मैं और यहाँ से अपडेट टेबल, अपडेट एंटायर टेबल। देखिए मेरे पास 2 और आ चुके हैं। ठीक है, मैं क्लिक करूंगा डायरेक्टली इस पेज के ऊपर आ जाऊंगा और देखें यहाँ पर इस कंटेंट के ऊपर मेरा पेज नंबर 2 भी लिख कर आ रहा है, यानी कि जो मेरा ये वाला कंटेंट है वो पेज नंबर 2 में। ठीक है, अब जैसा मैं आपको बता रहा था इंसर्ट फुट नोट और इंसर्ट एंड नोट। फुट नोट का मकसद क्या होता है कि अगर आपका कोई एक नोट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है किसी भी हवाले से, इस पैराग्राफ से रिलेटेड, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से एक फुट नोट क्रिएट करूंगा। तो आप देखिए जो फुट नोट मेरा क्रिएट होगा ना वो मेरे इसी पेज के एंड में होगा। जिस पेज के ऊपर मेरा ये पैराग्राफ होगा या जिस पेज को मैंने सिलेक्ट किया है, जिस भी टेक्स्ट को, और वो टेक्स्ट जिस पेज के ऊपर भी है उस ही पेज पे मेरे पास एक एंड पे बिल्कुल यहाँ पर एक फुट नोट आ जाएगा जहां पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। ठीक है, यानी कि मैं अपने यूजर को ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी जो मैंने यहाँ पर एक फुट नोट आपके लिए क्रिएट किया है वो कौन सा फुट नोट है, इस पैराग्राफ का। देखिए यहाँ पर लास्ट में 1 लिख कर आ रहा है और जैसे ही मैं इस पैराग्राफ के ऊपर आ रहा हूँ एक चीज होवर होकर आ रही है मेरे पास, वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। ठीक है, तो यानी कि मैं अपने यूजर को सही से गाइड कर पा रहा हूँ कि ये आपके लिए पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास कहाँ पर आ रहा है आप देख सकते हैं, इसी पेज के एंड में आ रहा है फुट नोट। अब अगर मैं यहाँ पर एंड नोट की बात करूँ, ठीक है, मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ से मैंने लिया एंड नोट। तो देखिए एंड नोट कहाँ पर आ रहा है मेरा, बिल्कुल पेज के एंड पे। फुट नोट मेरा कहाँ पर रहेगा भाई, उस पेज के एंड में। और जब मैं एंड नोट क्रिएट करूंगा तो जहां पर मेरा सारे काम खत्म हो रहे हैं ना वो बिल्कुल एंड में जाके मेरा ऐड हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ओनली इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आप देखें यहाँ पर मेरे पास इस पैराग्राफ में ये देखें यहाँ पर आ चुका है इम्पॉर्टेंट। क्लियर, तो ये हमारा फुट नोट है और ये एंड नोट है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट फुट नोट का, मैं अगर इस बटन पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर आ रहा है अगर मैंने बहुत ज़्यादा एंड नोट और फुट नोट क्रिएट किया हुआ है तो नेक्स्ट और प्रीवियस का तो ऑप्शन आपको पता ही होगा कि मैं नेक्स्ट करूँगा तो मैं नेक्स्ट के ऊपर आते रहूँगा अपने फुट नोट पे। ठीक है, और अगर मैं प्रीवियस करूँगा तो मैं प्रीवियस जाते रहूँगा। जैसे कि यहाँ पर आप मेरा कर्सर भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने यहाँ से नेक्स्ट किया, ठीक है, और यहाँ से अगर मैं प्रीवियस करूँगा तो मैं यहाँ पर आते रहूँगा। इसी तरह यहाँ पर मेरे पास एंड नोट का भी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, शो नोट्स, अगर मुझे कहाँ पर जाना है फुट नोट एरिया में या एंड नोट एरिया में, मैंने यहाँ पर एंड नोट एरिया को सिलेक्ट किया और ओके किया। देखिए मैं डायरेक्ट कहाँ पर आके एंड नोट के ऊपर आ चुका है। ठीक है, मेरा कर्सर। तो ये ऑप्शन है मेरे पास फुट नोट्स का। तो क्लियर, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है सिचुएशंस एंड बिब्लियोग्राफी का ऑप्शन आ रहा है, इसे भी हम देख लेते हैं। सिचुएशन क्या होता है, अगर आप अपने पैराग्राफ में ये बताना चाह रहे हैं कि भाई ये जो हमारा पैराग्राफ, ये जो हमारी हेडिंग है, ये हमारा जो ये टाइटल है, जो हमारा ये पूरा टेक्स्ट है, जो पूरा पैराग्राफ है, ठीक है, वो किसने टाइप किया है, किसने लिखा है। जैसे कि हर एक इंग्लिश वगैरह के आप चैप्टर्स वगैरह में देखें, हर एक चैप्टर्स के एक अलग अलग राइटर होते हैं। ठीक है, पब्लिशर एक अलग अलग होता है हमारे पास। ठीक है, कहाँ पर वो बुक लिखी गई है, ठीक है, कौन से ईयर में, वो सारी चीज़ें अगर हमें डिफाइन करनी हो तो सिंपल हम यहाँ से इंसर्ट सिचुएशंस का इस्तेमाल करेंगे। मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं एक सिचुएशन इसकी बनाना चाह रहा हूँ। ऐड न्यू सोर्स पे मैं जाऊँगा तो यहाँ से हमसे पूछ रहा है क्रिएट सोर्स। सोर्स हमारा क्या है भाई, बुक है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से बुक को सिलेक्ट किया हुआ। ऑथर कौन है इसका, ठीक है, ऑथर कौन है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ अहमद इसका ऑथर है। ठीक है, टाइटल क्या है भाई इस बुक का, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कम टू कोर्ट। ठीक है, कौन से ईयर में ये पब्लिश हुआ है, मैंने यहाँ पर लिख दिया 1990 में पब्लिश हुआ है। कौन से सिटी में हुआ है, मैंने यहाँ पर लिख दिया कराची में हुआ है। पब्लिशर इसका कौन है, मैं यहाँ पर कोई भी पब्लिशर नेम दे सकता हूँ अपने मर्जी से। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया
SACTC पब्लिशर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। कम टू कोड ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अब देन अगर मैं यहाँ पर ओके करूंगा तो आप देखें यहाँ पर मेरे पास क्या आ चुका है, एक सिचुएशन बनकर यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पर एंड में चाहिए तो उसके लिए मुझे कर्सर अपना इस एंड पे रखना होगा। दोबारा से मैं इंसर्ट सिचुएशन या मैनेज सोर्स पे अब मैं जाता हूँ तो देखें यहाँ पर मैंने एक अहमद कम टू कोड 1996 सिचुएशन क्रिएट किया हुआ है। अब अगर मुझे यहाँ पर ये सिचुएशन चाहिए, ठीक है, या तो मैं इस सिचुएशन को क्या करवा सकता हूँ भाई, अच्छा एडिट भी करवा सकता हूँ, एक न्यू सिचुएशन भी ले सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ, ठीक है, और कॉपी भी इसकी ले सकता हूँ। अगर मैं काम ये करूँ तो मैं यहाँ पर इंसर्ट सिचुएशंस पे जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर अहमद मेरे पास आ रहा है, शॉर्टकट में मैंने क्लिक किया, यहाँ पर देखिए मेरे पास वो सिचुएशन क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो ये हम कुछ इस तरीके से अपने सिचुएशन को मैनेज कर सकते हैं। मैनेज सोर्स के अंदर जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर मेरे पास सारे ऑप्शंस आ रहे हैं कि अगर मुझे डिलीट करना हो, ठीक है, एडिट करना हो तो देखिए यहाँ पर एडिट का भी ऑप्शन आ रहा है, न्यू करना हो तो देखिए यहाँ पर मेरे पास न्यू का भी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। आप इसे ट्राई करके देख लेना आप लोग, ठीक है, तो आप लोग ज्यादा समझ सकते हो, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। तो प्रैक्टिस आप लोगों ने लाजमी करनी है। लास्ट ऑप्शन हमारे पास स्टाइल का एक ऑप्शन आ रहा है मैनेज सोर्स के बिल्कुल साथ ही। स्टाइल क्या है, अभी जैसे कि स्टाइल मेरे पास APA हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे स्टाइल्स हैं, हर स्टाइल का एक अलग अलग काम है। जैसे मैं अगर इसको क्लिक करूँ इस स्टाइल पे, ठीक है, या इस पे क्लिक करूँ, यहाँ पर मैं आता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देखते हैं भाई क्या होता है इस स्टाइल से। हर एक स्टाइल का देखें एक अलग अलग काम है। यहाँ पर मैंने MLA किया तो मेरे पास सिर्फ अब नेम आ रहा है, ठीक है, तो ये शॉर्ट कर कर आता है हमारे पास। दोबारा से मैं इसको APA सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब बिब्लियोग्राफी भाई अगर हमें चाहिए अपने पेज पे रेफरेंस चाहिए इसका, ठीक है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, एंड पर आएंगे, बिल्कुल बिब्लियोग्राफी में जाने के बाद यहाँ पर हमने बिब्लियोग्राफी को चूज कर लिया। सिंपल देखें यहाँ पर हमारे पास एक बिब्लियोग्राफी आ चुका है कि अहमद है भाई राइटर, 1990 में ये क्या हुआ है, पब्लिश हुआ है, कम टू कोड, ऑथर नेम या कंपनी नेम जो भी है कराची में, और CTC पब्लिशर नेम, इस तरह हमारे पास आ चुका है। अगर हमें बिब्लियोग्राफी चाहिए हो हमारे पेज के एंड में तो हम सिंपल यहाँ से आके बिब्लियोग्राफी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट करवा लेंगे। क्लियर है? तो हमने ये तीन ऑप्शन को पढ़ लिया। अब हम आते हैं चौथे के ऊपर, जिसमें हमसे कैप्शन का बोल रहा है भाई। कैप्शन के लिए हमें यहाँ पर कोई इमेजेस वगैरह चाहिए होंगे, ठीक है, तो सब काम ये करते हैं हम, सिंपल आते हैं इंसर्ट में और यहाँ पे कोई पिक्चर्स वगैरह इंसर्ट करवाते हैं। जैसे कि हमने इस पिक्चर को इंसर्ट करवा दिया, ठीक है। रॉप टेक्स्ट में जाके इसको मैं थोड़ा सा स्क्वायर चूज करता हूँ, यहाँ से कम कर लेता हूँ साइज, और ऊपर वाले पेज पे मैं इसको लेके जाता हूँ। अच्छा, अब सबसे पहले तो करना क्या है, हमने यहाँ से इसको सबसे पहले रेफरेंस में जाके कैप्शन देना है इस पिक्चर को, यानी कि नेम वगैरह देना है। तो हम जाते हैं इंसर्ट कैप्शन के ऊपर और यहाँ से इस पिक्चर को कोई भी नेम दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पर फास्ट फूड मैंने एक नेम दे दिया इसको, फास्ट फूड, ठीक है। देन ओके करेंगे। देखें यहाँ पर हमारे पास एक कैप्शन आ चुका है इस पिक्चर का। अब करना क्या है, हमें ये क्या कैप्शन आ गया हमारे पास। अब हमें इसे करवाना है इसी कंटेंट के अंदर अपडेट। तो सिंपल मैं इस कंटेंट के ऊपर जाता हूँ और यहाँ से इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे क्लिक करूंगा और यहाँ से कर दूंगा ओके। देखें जैसे मैं ओके करूंगा मेरे पास एक फिगर 1 के नाम से भी क्या आ चुका है, एक कंटेंट बन चुका है। अगर मैं डायरेक्टली इसके ऊपर क्लिक करूँ तो मैं कहाँ पर आ जाऊंगा, इस पिक्चर के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली इस पिक्चर पे आ सकता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि बुक वगैरह के अंदर पिक्चर्स वगैरह भी होती हैं। अगर हमें डायरेक्टली पिक्चर के ऊपर आना है तो सिंपल हम पिक्चर के ऊपर आ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है अपडेट टेबल का और क्रॉस रेफरेंस का। अपडेट टेबल के लिए वही काम, सबसे पहले हमें कोई और पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट करनी होगी। दोबारा हम जाते हैं इंसर्ट टैब में, पिक्चर्स के ऊपर जाते हैं और यहाँ से कोई पिक्चर इंसर्ट करवाते हैं। जैसे कि ये बर्गर इंसर्ट मैंने करवा दिया इसको। ड्रॉप टेक्स्ट से मैं इसको यहाँ से स्क्वायर अप्लाई किया और यहाँ से मैं इसको सेट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको सेट कर दिया। दोबारा इसके लिए सबसे पहले मुझे एक कैप्शन देना होगा रेफरेंस में जाने के बाद, ठीक है। फिगर नंबर 2 मेरे पास आ रहा है। हम यहाँ से अपने लेबल को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इक्वेशन, पिक्चर,
पिक्चर, टेबल, फिगर, या तो अगर हमें कोई न्यू लेबल चाहिए तो हम यहाँ से न्यू लेबल भी ले सकते हैं। अभी मैं फिगर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने बर्गर का एक कैप्शन इसे दिया और देन ओके किया, मेरे पास बर्गर का कैप्शन आ चुका है। वही काम हमें क्या करना है, टेबल के ऊपर आना है, ठीक है। अपडेट टेबल करेंगे और यहाँ से अपडेट एंटायर टेबल, देन ओके। देखिए हमारे पास फिगर 2 भी बर्गर के नाम से आ चुका है। मैं डायरेक्टली इसके ऊपर क्लिक करूंगा, मैं आ चुका हूँ इस बर्गर वाले पिक्चर के ऊपर। तो सिंपल सा ये बिल्कुल इजी सा काम है हमारे पास रेफरेंस के अंदर, ठीक है। अब जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है क्रॉस रेफरेंस का। क्रॉस रेफरेंस मैंने आपको इंसर्ट के अंदर भी पढ़ाया था, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप सबसे पहले जाके इस वीडियो को वॉच करें। फिर भी मैं रेफरेंस के अंदर बताता हूँ, अगर मुझे क्रॉस रेफरेंस चाहिए, अब देखिए आप ये सजेस्ट करें कि मेरे पास तो ये पैराग्राफ है ना, ये रिलेट कर रहा है इस पिक्चर को भी और इस पिक्चर को भी। अब कस्टमर देखना चाह रहा है कि ये और कौन कौन से पिक्चर पे रिलेट कर रहा है। एक तो इसके सामने ही आ रहा है, लेकिन एक हमारे पास किसी और पेज पर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर काम करूँ, मैं इसको यहाँ पर एक लगा दूँ क्रॉस रेफरेंस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ क्रॉस रेफरेंस के ऊपर, अब देखिए यहाँ पर मेरे पास रेफरेंस टाइप और इंसर्ट रेफरेंस टू आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ और मेरे पास अभी किया मैंने यहाँ पर लिया है एक फिगर, ठीक है। मैंने रेफरेंस टाइप में फिगर सेलेक्ट किया, फिगर किसके ऊपर लगाना चाह रहा हूँ, फिगर 2 के ऊपर। और एक इंसर्ट रेफरेंस 2 पे मैं क्या लगाना चाह रहा हूँ, कैप्शन, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से इंसर्ट करूँ तो देखिए मेरे पास क्या आ चुका है, फिगर 2 बर्गर। मैं इसे यहाँ से क्लोज करता हूँ। अब अगर कोई मेरा यूजर ये पैराग्राफ पढ़ रहा होगा ना, तो इसके पास एक क्रॉस रेफरेंस वाला एक कैप्शन आ रहा होगा। अगर वो चाह रहे कि भाई वो इस फिगर नंबर 2 को भी देखे 1 के साथ, तो वो इसके ऊपर क्लिक करेगा और वो कहाँ पर आ जाएगा, इस फिगर नंबर 2 के ऊपर। तो सिंपल हम कुछ इस तरीके का क्रॉस रेफरेंस से काम करवा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा कैप्शंस का भी यहाँ पर काम खत्म होता है। अब हम आते हैं इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटीज के ऊपर। इसका इतना ज़्यादा खास काम तो नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ काम क्या है भाई। अगर मैं इस बॉक्स को यहाँ से क्या कर रहा हूँ भाई, मार्क कर रहा हूँ टेक्स्ट बॉक्स को। मैंने यहाँ से मार्क एंट्री के ऊपर क्लिक किया और मैंने यहाँ से कर दिया मार्क, ठीक है। और यहाँ से मैं करूँ क्लोज। क्लोज करने के बाद यहाँ पर मैं होम में जाऊँगा और इसको शो और हाइड का ऑप्शन है, इसको मैं यहाँ से ऑफ कर दूँगा, ठीक है। अब अगर मुझे इसको भी टेबल के अंदर इंसर्ट करवाना है ना, तो सिंपल मैं यहाँ से रेफरेंस में आऊँगा, इंसर्ट इंडेक्स करूँगा और यहाँ से देन ओके करूँगा। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स का 1 का एक ऑप्शन आ चुका है, मार्क। अगर मैं इसके ऊपर डायरेक्टली क्लिक करूँ तो मैं कहाँ पर आ जाऊँगा, इस टेक्स्ट बॉक्स वाले ऑप्शन में आ जाऊँगा। इसी तरह अगर मुझे और भी यहाँ पर अपडेट करना है, तो जैसे मैंने आपको ये सारे ऑप्शन में बताया है अपडेट का, सिंपल हम इसी तरीके से यहाँ से भी इसको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा ऑप्शन है, ये आपने खुद से करके देखना है, ठीक है, लाजमी। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रहा है मार्क सिचुएशन का। इसका भी वही काम है, अगर हमें किसी चीज़ को सिचुएशन करना है, मिसाल के तौर पर यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया, मार्क सिचुएशन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ से मैंने कर दिया इसे मार्क। क्लोज करते हैं। यहाँ से दोबारा होम में जाने के बाद शो एंड हाइड ऑप्शन को ऑफ करते हैं। इसको भी अगर हमें टेबल के अंदर इंसर्ट करवाना है, रेफरेंस में जाते हैं और इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज और सेंड यहाँ से ओके। देखिए मेरे पास केस के अंदर ये क्या आ चुका है, यहाँ पर यू कैन पेस्ट, यानी कि पहले पेज पर आ रहा है एक हमारा केस। अगर हमें इस केस के ऊपर डायरेक्टली जाना, हम क्लिक करेंगे तो हम कहाँ पर आ जाएंगे, इस केस के ऊपर, ठीक है। तो ये सारे सिंपल से ऑप्शन है। इसी तरह अपडेट टेबल, आपने दोबारा से कोई भी चीज़ को सिलेक्ट करना है, ठीक है, उसके बाद दोबारा से एक टेबल को अगर आपने अपडेट करवाना है तो अपडेट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास वो भी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। तो आपने ये हमारा रेफरेंस टाइप का वीडियो थी आज की। लाजमी आपने जो है ना इसको ट्राई करना है, प्रैक्टिस करना है। तो आज की वीडियो यहीं तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।